1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मार्क 6 चैप्टर 30 वर्स से 56 वर्स, लेविटिकस 25 चैप्टर। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 30 वचन से 56 वचन तक और लेविय व्यवस्था 25 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपके हाथों में समर्पित होते हैं। हम वचन को खोना नहीं चाहते, वो हमारी दोस्त बनने के लिए मांगते हैं, क्योंकि वचन ही एकमात्र उजियाला है जिसके अंदर से हम आपको देख पाते हैं, हम आपको समझ पाते हैं। वचन एकमात्र ऐसी रोशनी है जो हमारे अंदर से अंधेरे को दूर करती है। बिना वचन के पिता परमेश्वर हम कहीं पर पहुंचने वाले नहीं हैं, हम धोखे में हैं। अब फादर गॉड, हम सिर्फ वचन जानने वाले ना बने और वचन के संगति में चलने वाले भी बने। अब फादर गॉड, हमारी कृतियों में हम वचन पिता प्रकट करते हुए चले। ऐसा अभिषेक कर, तेरे आत्मा के बिना असंभव है मेरे पिता। नासरी यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, हम गहरी दोस्ती में हो जाए पवित्र वचन के साथ। ऐसा अभिषेक उतारो हमारे ऊपर, नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। मार्क 6 चैप्टर 30 वर्स से 56 वर्स तक पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। And the apostles gathered themselves together unto Jesus and told him all things, both what they had done and what they had taught. And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place and rest a while. For there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. And they departed into a desert place by ship privately. And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and out went them, and came together unto him. And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as a sheep not having a shepherd. And he began to teach them many things. And when the day was now far spent, his disciples came unto him and said, This is a desert place, and now the time is far past. Send them away, that they may go into the country round about, and into the villages, and buy themselves bread, for they have nothing to eat. He answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy 200 penny worth of bread, and give them to eat? He said unto them, How many loaves have ye? Go and see. And when they knew, they say, 5 and 2 fishes. And he commanded them to make all sit down by companies upon the green grass. And they sat down in ranks by hundreds and by fifties. And when he had taken the 5 loaves and the 2 fishes, he looked up to heaven, and blessed and brake the loaves, and gave them to his disciples to set before them. And the 2 fishes divided he among them all. And they did all eat, and were filled. And they took up 12 baskets full of the fragments and of the fishes. And they that did eat of the loaves were about 5,000 men. And straightway he constrained his disciples to get into the ship, and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. And he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them. And about the 4th watch of the night he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. But when they saw him walking upon the sea, they
They supposed it had been a spirit and cried out, for they all saw him and were troubled. And immediately he talked with them and said unto them, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And he went up unto them into the ship, and the wind ceased. And they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered, for they considered not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. And when they had passed over, they came into the land of Gennesaret, and drew to the shore. And when they were come out of the ship straightway, they knew him, and ran through that whole region round about, and began to carry about in beds those that were sick, where they heard he was. And whithersoever he entered into villages or cities or country, they laid the sick in the streets, and besought him that they might touch, if it were but the border of his garment. And as many as touched him were made whole. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 30 वचन से 56 वचन तक। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 30 वचन से 56 वचन तक। प्रेरितों की वापसी और एकांतवास 30 वचन से आगे पढ़ेंगे। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए 5,000 पुरुषों को खिलाना। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर के चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सब को हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। वे 100-100 और 50-50 करके पांति पांति बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई, और कुछ मछलियों से भी जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे। यीशु का पानी पर चलना 45 वचन से आगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4थे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा,
ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना। 53 वचन से आगे वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसकी पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है, वहां वहां लिए फिरे। और जहाँ कहीं वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, ये सुंदर वचनों के अंदर से भेद जाहिर करने के लिए धन्यवाद। ये वचन में हम फिट हो जाए, फिक्स हो जाए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में होकर आ जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।